आज हमारी 7वीं क्लास है, लेकिन क्लास नंबर यानी हदीस नंबर 4 है। आज इंशाअल्लाह चौथी हदीस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले 3 अहादीस तय्यबा पर गुफ्तगू की गई थी और उसमें से पहली हदीस पाक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्माए मुबारका, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़े कौसर का मालिक होना, खजानों का मालिक होना, इससे रिलेटेड we mention few things in light of the Quran, in light of the Hadith. And on the third occasion, with regard to the 5 secrets, 5 ग़ुयूब, उलूम खमसा जिसको कहा जाता है, उसके ताल्लुक से हमने कुरान और अहादीस की रोशनी में प्रूव किया कि अल्लाह तबारक व तआला has blessed his Habib sallallahu alaihi wasallam with the knowledge of those 5 unseen as well. आज चौथी हदीस पाक where Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam mentions ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. The mafhum of the hadith is, if any one of you greets me, Allah returns my soul to me and I respond to the greeting. अब उर्दू में ये तर्जुमा बस बेसिक बता रहा हूं, हालांकि ये सही मानों में वाज़ेह तर्जुमा नहीं है. This is not the real translation, because you know mostly the followers of Wahhabism have translated the ahadith, even the Quran. इसलिए कंजुल ईमान पढ़ा करे, refer only to कंजुल ईमान amongst the most authentic translations of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. और अहादीस तय्यबा में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी स्कॉलर्स कर रहे हैं, लेकिन गूगल में ज्यादातर आपको you will find mostly in Google the translations by the Wahhabi followers. So they are lacking in the terms of respect. आदाब वाले अल्फाज को वो इस्तेमाल नहीं करते. तो in Urdu it goes as, जब भी कोई तुम में से मुझ पर सलाम पेश करेगा, अल्लाह ताला मेरी रूह मुझे लौटा देगा और मैं उसके सलाम का जवाब दूंगा. Now the proper translation is, because mashallah in this group we have many intellectuals, उलमा भी है, तालिब इल्म भी है. तो इन अरबिक लैंग्वेज यू नो किसी चीज की नफी करते हुए बाय यूजिंग द टर्म मा, नफी करते हुए बाद में इल्ला आ जाए, सो इट मीन्स कंफर्मिटी, यानी एक बात को कंफर्म करने के लिए. फॉर एग्जांपल कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. The followers of Wahhabism they translated Muhammad sallallahu alaihi wasallam is just a messenger. वो तो खाली एक रसूल है. Whereas this is not the right translation. वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद तो बस एक रसूल है, is just a messenger. No, because before the term Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah is using the term ma. Muhammad is not illa but रसूलुन, a messenger. तो अरबिक में इसका माना ये अब होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही हैं. He is the messenger of Allah tabaraka wa ta'ala. Now you see the difference. Their translation, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is just a rasul. He's no more than a messenger. You will find this also. He's no more than a messenger. वो रसूल से ज्यादा कुछ नहीं है. Whereas रसूल का होना ही सबसे बड़ी फजीलत है, but still they are trying to create negativity. The term rasul itself is the greatest excellence, yet by mentioning he is rasul, they try to create negativity. ये कह के कि वो रसूल के सिवा कुछ नहीं है. He is no more than a messenger. The real translation is, he indeed is the messenger of Allah tabaraka wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam तो अल्लाह के रसूल हैं. तो यहाँ कंफर्मिटी हो जाए. Likewise here, ma min ahadin, कोई भी मुझ पर सलाम नहीं भेजता. No one is sending salam upon me. Ma min ahadin yusallimu alayya illa, except Allah Ta'ala returns my soul to me, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब दूं. I respond to his salam. Now the meaning would be, anyone from wherever and whenever sends salam upon me, I will surely respond to his salam. जब भी, कभी भी, कोई भी, कहीं से भी मुझ पर सलाम पेश करेगा, मैं उसके सलाम का जवाब दूंगा. But now the term इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही, अल्लाह मेरी रूह मुझे लौटा देगा, इसका मतलब क्या हुआ? So this doesn't mean that at the time of every salam
द सोल इज गिवन एंड टेकन बैक, द सोल इज गिवन एंड टेकन बैक, ऐसा नहीं है। इसलिए कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह दरूद और सलाम पढ़ते रहते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Once again, sallallahu ala nabiyyil ummi wa alihi sallallahu alayhi wa sallam, salatan wa salaman alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Once more, salatu wa salamu alayka ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now we recited salawat and salam within a gap of a second. वो भी 3 सेकंड के गैप में 3 बार हमने पढ़ा। And not only us, millions of people are reciting salawat and salam. Now we will ask those people who say, जब सलाम पढ़ा जाता है तभी रूह दी जाती है, फिर वापस ली जाती है। Now we will ask them this question: when was that moment? What was that moment the ruh of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given and taken back? इसलिए कि हर मोमेंट जब दरूद और सलाम पढ़ा जाता है तो ऐसा कोई मौका होगा ही नहीं कि देने का भी वक्त हो, लेने का भी वक्त हो। So the scholars of the hadith have explained this, that this hadith means, because this hadith से पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम did mention whilst in this दुनिया, ज़ाहिर दुनियावी जिंदगी में फरमाया ना कि जब भी मुझ पर कोई सलाम पड़ेगा अल्लाह मेरी रूह लौटा देगा, मैं उसके सलाम का जवाब दूंगा। So this indicates कि हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, एक आन के लिए मुझे मौत का मजा चखना है, for a moment I will taste the death and next moment the soul will be given back to me. अब जब भी कयामत तक जो मुझ पर सलाम पड़ेगा I will keep responding to their salam. ये नहीं कि ली जाती है, दी जाती है, no. Permanently the soul has been returned to Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, and this is the explanation given by all the scholars of the hadith, whether he is Imam Jalaluddin Suyuti Shafi'i rahmatullahi alayhi or Sheikh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi rahmatullahi alayhi, Imam Taqiyuddin Subuki rahmatullahi alayhi, Imam Bayhaqi rahmatullahi alayhi, बड़े-बड़े scholars of the hadith ने यही माना दिया। And this meaning is also apparent from the other ahadith of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, which we mentioned before, हमने पेश किया था, al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun, all the prophets of Allah, they are physically alive in their graves and they offer prayer. So the life is given back soon after tasting the death. अब इसको और आसानी से समझने के लिए कि सरकार अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका उनके जिस्म अक़दस में वापस लौटा दी गई। मिशकात शरीफ में एक हदीस है, बाबू वफातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द चैप्टर इज टेस्टिंग ऑफ द डेथ बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें हदीस पाक ये बयान की गई जिसका मफहूम ये कि व्हेन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फीलिंग इल, हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम डिसेंडेड और पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इज आस्किंग हाउ डू यू फील, यानी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये पूछ रहा है कि आप अपने को कैसा पा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड इन सच टर्म्स, मगमूमन, मैं गमगीन हूं। नाउ सम पीपल स्टार्टेड मिसइंटरप्रेटिंग दिस टर्म आल्सो, मगमूमन, के हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होती होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। नो, whereas the term मगमूमन here means he was worried about his ummah, उम्मत के ताल्लुक से सरकार अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। एंड दिस इज सेपरेट। दुनिया में जब तशरीफ लाए, सजदा फरमाया, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। एंड आला हजरत मेंशंस इन लाइट ऑफ द अहादीस एंड द नरेशंस, जो इमाम कुर्तुबी जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने तफसीर में लिखा, दीगर अहादीस भी है, जिसका निचोड़ ये पेश किया कि पहले सजदे में जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। इवन एट दैट टाइम व्हेन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, बिकॉज ही इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अनलाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, हम पैदा होते ही सजदा नहीं करेंगे, लेकिन सरकार अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं फरमाई। And this is recorded in the tafasir, in the ahadith. तो अब क्या पता चला, आला हजरत ने जो लिखा है, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, on that sajda of नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, which was the first sajda in this world, दुनिया में आते ही first sajda of this दुनिया, रोजे अजल से दुरूद, since Allah Ta'ala created the creation, तब से लेकर आज तक अल्लाह ताला हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम पर दुरूद नाजिल फरमाए। अल्लाहु अकबर। यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम।
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त ही वाज रिमेंबरिंग हिज उम्मा, ही वाज सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर हिज उम्मा. सो मिलियंस ऑफ सैल्यूटेशंस, करोड़ों लाखों सलाम हो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस अदा पर जो उम्मत की याद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए उस सजदे में. पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम. एंड मुरीद ऑफ आला हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसको यूं समझाया कि रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, इसलिए कि अल्लाह एक्सेप्टेड द दुआ ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. And even in the worldly life, always our Nabi sallallahu alaihi wasallam used to pray for the forgiveness of his ummah. And we mentioned that there are hadith, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. आज भी रोजे अनवर में आराम फरमाते हुए सरकार अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम is still seeking forgiveness for his ummah. और बरोज़े क़यामत भी यही होगा कि हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अल्लाह की बारगाह में एक तवील सजदा फरमाएंगे, which we mentioned on the first hadith in the second class. that वो सजदा ऐसा होगा कि जिसमें अल्लाह ताला कुछ अल्फाज हुजूर के लिए इल्का फरमाएगा, and those terms will be such that none has praised Allah in such terms. फिर अल्लाह फरमाएगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा रअसक, raise your head from sajda and seek forgiveness, seek शफात, your शफात will be accepted, etc. तो क्या पता चला कि मग़मूमन इस वक्त जो हुजूर ने फरमाया, when Jibril alayhi salam asked this question, Allah is asking, how do you feel, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? He said, maghmuman. On the second day, again Jibril Amin alayhi salatu wasallam descended and he asked the same question, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah is asking, how do you feel? और हुजूर alayhi salatu wasallam ने वही जवाब दिया जो previous day he answered. Even on the third day, Sayyidina Jibril Amin alayhi salatu wasallam descended. Or third day, there was another angel named Hazrat Ismail alayhi salatu wassalam. And hadith में आता है कि वो इस्माइल alayhi salam जो फरिश्ते हैं, he is leader of such 100,000 angels under whom everyone is leader for 100,000 angels. यानी इस्माइल alayhi salatu wassalam 1,00,000 ऐसे फरिश्तों के सरदार है कि उस 1,00,000 में हर एक लाख फरिश्तों के सरदार है. तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 1,00,000 उनके सरदार है हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरिश्ते साथ में आए थे. और मलकुल मौत भी तशरीफ लाए. Now जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम asked, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत आए हैं, he is seeking permission to enter your blessed home. क्या पता चला? Even the angel Malakul Maut has to seek permission before entering the exalted home of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मलकुल मौत हमसे कोई इजाजत नहीं मांगेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकते. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम granted him the permission. He entered. और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी हुजूर की बारगाह में परमिशन लेते हैं. And especially this is mentioned in the narrations कि जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो जिब्रील अमीन विदाउट परमिशन एंटर नहीं होते. इसकी तशरीह आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने यूं फरमाई, जिनमें रूहुल कुदस बे इजाजत न जाए उस सुरादिक के किस्मत पे लाखों सलाम. सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इज सच प्योर, ऐसी प्योरिटी वाली है, ऐसी पाक दामन है कि even Jibril alayhi salatu wasalam has to seek permission to enter the home of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam when he is with Sayyidah Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. Bint Siddiq आराम जाने नबी उस हरीम बराअत पे लाखों सलाम, यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम, जिनमें रूहुल कुदस बे इजाजत न जाए. रूहुल कुदस जिब्रील अलैहि सलातु वसल्लम, जिनमें रूहुल कुदस बे इजाजत न जाए उस सुरादिक की किस्मत पे लाखों सलाम. अल्लाहु अकबर. तब क्या हुआ? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत ली गई मलकुल मौत के लिए. When he entered, now मलकुल मौत is saying, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I have come on the command of Allah. अल्लाह के हुक्म से आया हूँ. और हुक्म यह है कि या रसूल अल्लाह, if you permit, I will capture your blessed soul. मैं आपकी रूह मुबारका यानी मौत का मजा चखने का वक्त आ गया है. अगर आप इजाजत देंगे तो मैं
आपको मौत का मजा चखाने की खिदमत कर लूंगा। और या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत नहीं देते, इफ यू डू नॉट ग्रांट मी परमिशन, आई विल गो बैक। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह पूछा कि ओ मलकुल मौत, विल यू डू दैट इफ आई से नो, आर यू गोइंग टू रिटर्न बैक? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यस या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई हैव बीन कमांडेड, अल्लाह का हुक्म ही यही है कि आई हैव टू ओबे यू या रसूल अल्लाह, आप जो फरमाएंगे वही मुझे करना है। इफ यू परमिट, आई विल डू योर खिदमा, एंड इफ यू डू नॉट परमिट, आई विल गो बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ नजर फरमाई। वैसे तो पूरी कायनात हुजूर की नजरों के सामने। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूज्ड सम टर्म्स कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह इज विलिंग टू मीट यू, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है, इस तरह के अल्फाज। देन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड परमिशन एंड मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही on the command of Allah, with the permission of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, he captured the Ruh Mubarakah. Now the question arises, ये रूह मुबारका कहाँ रखा जाए? Because in light of the hadith, कुफ्फार की रूहें जो है ना, वो जमीन के अंदर, कुछ रूहें निचले तबके में, at the bottom of the earth, वो imprisoned होती, और मुसलमानों की रूहें, some souls of the Muslims are near their graves। और कुफ्फार के ताल्लुक से भी है कि यमन में there is a well, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उस कुएं के पास रूहें रहती है, और कुछ रूहें जमीन के नीचे, कुछ रूहें सातों जमीन के नीचे, यानी imprisoned, they cannot move। मुसलमान के ताल्लुक से कि कुछ रूहें they roam nearby their graves, और कुछ रूहें near the well of Zamzam, and some souls on the first heaven, पहले आसमान पे, जिनका मर्तबा और ज्यादा है वो सेकंड आसमान पे, जिनका मर्तबा और ज्यादा है on the third heaven, यूं करते करते some on the seventh heaven, and some souls, like it is recorded about the souls of the shuhada, martyrs, शहीदों की रूहें, अरवाह, वो अल्लाह ताला की अर्श की सैर करती है, जन्नत की सैर करती है। So some souls they even roam in Jannah, तो जिसका जैसा मर्तबा वैसे। Now the question arises कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारका कहाँ रखा जाए? Because the souls of the believers near their graves, souls of the believers as per their ranks near the Zamzam well, some on the first, second, third heavens, अर्श पर जन्नत की सैर करना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में तो आसमान बना है। It is by the barakah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam even the arsh is created, and through the wasila of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam even the Jannah is created। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारका कहाँ रखा जाए? तो अब कंक्लूजन ये है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, there is no better place for the soul of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam than the blessed body of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस से कोई बेहतर जगह ही नहीं जहां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक रखा जाए। So now in light of the other ahadith, it is apparent कि अंबिया किराम को अरवाह लौटा दी जाती है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारका भी एंड उस मोमेंट में रूह मुबारका कब्ज करने के बाद इट वाज रिटर्न टू द ब्लेसेड बॉडी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ द हदीस इज क्लियर, अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, अल्लाह के तमाम नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाजें अदा करते हैं, तो जिंदा का लफ्ज वही रूहें वापस दी जाती है। और इसकी तर्जुमानी आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस तरह फरमाया कि अंबिया को भी अजल आनी है। Even for the prophets of Allah, on the command of Allah, they are to taste the death। अंबिया को भी अजल, मौत टेस्ट करना है, मगर ऐसी कि बस आनी है। पहले आनी मीनिंग मौत आना है, अंबिया को भी अजल आनी है, इट हैज टू कम। विच टाइप? मगर ऐसी कि बस आनी है। यहाँ दूसरा आन एक मोमेंट के लिए, यानी अंबिया किराम को एक मोमेंट के लिए मौत आती है, फिर फौरन उसके बाद अल्लाह ताला उनकी अरवाह उनके जिस्मों में लौटा देता है। So now in light of these narrations, if you refer to this hadith, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam। अब माना क्लियर हो गया कि after I taste the death, my soul will be returned back to me,
मेरी रूह मुझे वापस दी जाएगी, और जब भी मुझ पर क़यामत तक whoever is sending salam upon me, I will respond to his salam. Subhanallah. Now, there are a few points to understand, that is points on aqaid from this hadith. One, दुरूद पाक की फजीलत, excellence of salawat and salam. जाहिर है कितनी बड़ी बात है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम is responding to our salam. हम हुजूर पर सलाम भेजते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, तो हुजूर अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं. ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है. And number two, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, knowing all those जो दुरूद पढ़ते हैं, दुनियावी जिंदगी में हुजूर पर जो दुरूद पढ़ते थे, उन सबको हुजूर अलैहिस्सलाम पहचानते हैं. Knowing all those reciting salawat during his worldly life. सहाबा किराम में उस दौर में जितने भी लोग हुजूर पर दरूद पढ़ते थे, और हजरत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु जिनको सहाबियत का शर्फ नहीं बख्शा गया, लेकिन सय्यदुत ताबईन है, उन्होंने भी दुरूद पढ़ा है. अगरचे वो यमन में थे, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम knew who is reciting salawat in light of this hadith. During his worldly life, whoever have recited salawat and salam, it was known to Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. And from this hadith, this is also understood that even aaj bhi, and until qiyamah, whoever is sending salawat and salam upon Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, those all are recognized by Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Huzur alayhi salatu wasallam sabko jante hain. Point number 4, अंबिया किराम की हयात, मौत का मजा चखने के बाद, ये भी एक point which I mentioned. Point number 5, there are other ahadith which says that Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam saying कि जब कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते वो दरूद मुझ पर his name and the name of his father के साथ मुझ पर पेश करते हैं. तो that means listening power of the खादिम, फरिश्ते अंबिया किराम के खादिम हैं, उनकी सुनने की ताकत कितनी है, उस पर भी इंशाल्लाह we will provide some hadith. And ability of listening everyone after this world from the above ahadith. सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम लोगों के जो सलाम पढ़ते हैं, सबका सलाम क़यामत तक. और इस वक्त हम अगर पढ़ लेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, तो अभी हमने जितने भी पढ़ा सबका सलाम हुजूर ने सुन लिया है. तो एट द सेम टाइम हजारों के सलाम, लाखों के सलाम सुनने की ताकत अल्लाह ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई. एंड एबिलिटी ऑफ recognizing everyone after leaving this world. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना सिर्फ सुनते हैं, हम सबको पहचानते भी है कि कौन कौन यहाँ पढ़ रहे हैं इस वक्त दुनिया में. who are reciting salawat. Not only हुजूर अलैहिस्सलाम is listening, he is recognizing all of us. And number 8, ability to respond to everyone simultaneously. एक ही वक्त में अभी सलाम सुना, पहचान भी लिया, and he is able to respond to salam of everyone. सबको सलाम का जवाब देने की कुदरत भी अल्लाह ताला ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई. So we are going to discuss these 8 points from this one hadith, which is the hadith ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. कि जब भी कभी भी कोई भी कहीं से भी मुझ पर सलाम पड़ेगा, अल्लाह ने मेरी रूह मुझे लौटा दी, यानी मेरे मौत का मजा चखने के बाद फौरन लौटा देगा और मैं सबके सलाम का जवाब दूंगा. तो इस हदीस में I have tried to mention 8 different points on Aqidah. And the first part, excellence of salawat and salam upon Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. This is recorded in Nasa'i Sharif, which is one of the Sihah Sitta. عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه. एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, and when नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came, it was such a moment that he came with a cheerful expression on his face. सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे में खुशी के आसार थे. He was very happy, very pleased with that. तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फकुलना इन्ना लनरल बुशरा फी वजहिक, या रसूल अल्लाह हम आपके चेहरे ज़ेबा में खुशी के आसार देख रहे हैं. We see you looking cheerful, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु अतानियल मलक, मेरे पास एक फरिश्ता आया, फकाल और कहने लगा,
या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रब्बक यकूल, बेशक योर लॉर्ड सेज दिस. हुजूर अलैहि सलाम says, an angel descended and he came and told me that या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, your lord says, आपका रब फरमाता है, अमा युर्दीक, क्या आप इस बात पर राजी नहीं है? Are you not pleased with this, O my Habib sallallahu alaihi wasallam? अन्नहु ला युसल्ली अलैका अहदुन इल्ला सल्लैतु अलैहि अशरा, कि जो भी आप पर एक बार दुरूद भेजेगा मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूंगा. Anyone who is sending salawat upon you, I will send 10-fold salawat. अल्लाह की तरफ से सलावत का मतलब क्या हुआ? रहमतें अता फरमाएगा. अल्लाह हम पर दरूद पढ़ रहा है. वजह, we are sending salawat upon नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. We are sending one salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi, and Allah is sending 10 rahmat. कितनी बड़ी बात है. And the hadith continues, وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ أَشْرًا. और ए मेरे हबीब, क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि आप पर कोई एक बार सलाम पढ़े तो मैं उस पर 10 सलामती नाजिल करूंगा. I will send 10. When he sends salam upon you, I will send salam upon him 10-fold. तो 10 अल्लाह ताला की तरफ से सलाम, अल्लाह की तरफ से सलामती मिलना, इससे बढ़कर कौन सी चीज है? यानी ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे हबीब पर दुरूद भेजा, तुझ पर रहमत. तूने मेरे हबीब के पर सलाम भेजा, तुझ पर सलामती हो. You send salawat upon my habib, I am blessing you with 10 mercy. And you send salam upon my Nabi sallallahu alaihi wasallam, I am giving you salam 10-fold. तो अल्लाह ताला ये फरमाए कि ऐ मेरे नबी के गुलाम, you be peaceful, तुम सलामत रहो. इससे बढ़कर कौन सी चीज है? कौन सी फजीलत इससे बढ़कर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने की बरकत से अल्लाह हमारे लिए सलामती आता फरमाता है. अल्लाहु अकबर. सो अल्लाह की तरफ से सलाम का मिल जाना, इससे बड़ी कौन सी नियामत है? और ये कब मिल रही है? When we send salawat and salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So from this hadith there are two terms, because in the Quran Allah uses the term Ya ayyuhalladina amanu, O believers, sallu alayhi, send salawat upon my Nabi, mere Habib par durood bhejo. Wasallimu taslima, send salam in abundance, खूब सलाम भेजो. तो अल्लाह का हुक्म सिर्फ दुरूद पाक का नहीं है, सलाम का भी है. और सलाम भी खूब अच्छे तरीके से सलाम भेजने का जिक्र है. तो हम अगर अदब के साथ सलातो सलाम पेश करते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम, ए दीन हक के रहबर, तुम पर सलाम हरदम, मेरे शफीए महशर, तुम पर सलाम हरदम. ये अदब के साथ दुरूद और सलाम पढ़ना ये कुरान की रोशनी में है. बिकॉज अल्लाह से सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा. नाउ दोस पीपल हु से दैट वी शुड रिसाइट ओनली दुरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद. यही दरूद हमको पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अफजल दरूद ये है. यस इंडीड, ये अफजल दरूद है. दिस इज एक्सॉल्टेड सलावत. But if you keep reciting only this salawat, when are you going to act upon the term command of Allah, wasallimu taslima, मेरे हबीब पर खूब सलाम पढ़ो? इस पर कब अमल होगा? If you just recite दुरूद इब्राहिम in this, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad है, सल्ली है, सल्लिम नहीं है. So we are acting on the command sallu alayhi, but not on wasallimu taslima. Now क्या पता चला कि नमाज में चूंकि पहले हम सलाम पढ़ लेते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. We already recited salam in our prayer in tashahhud. तो अब नमाज में ये दुरूद अफजल है. क्यों? सलाम पढ़ लिया है, अब दुरूद पढ़ना है, तो दुरूद इब्राहिम अफजल है. Apart from salah, if we insist that this is the only salawat we should recite and this is the only exalted salawat, then when are we going to act on the command of Allah where He says, وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا?
तो नमाज के बाहर ऐसा दुरूद होना चाहिए जिसमें सल्लू भी हो वसल्लिमू, यानी सल्ली वसल्लिम, बोथ टर्म्स शुड बी देयर. दिस इज एक्सॉल्टेड. Now from this hadith also, Allah Ta'ala says, "Oh my Habib, are you not pleased with this?" कि जो भी आप पर एक बार दुरूद पढ़ेगा मैं 10 रहमतें नाजिल करूंगा, एक बार सलाम पढ़ेगा मैं 10 सलामती नाजिल करूंगा. तो दुरूद और सलाम दोनों का जिक्र है, तो कुरान पर अमल होगा. when we say अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अलैहि, सल्ली वसल्लिम. और even if we say सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें भी सल्लल्लाहु में दुरूद आ गया, अलैहि उन पर दुरूद या अल्लाह, वसल्लम और सलाम की. So when you use the term sallallahu alaihi wasallam, still you are acting on the command of Allah of salawat and salam. Or you recite Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi, Allah के हुक्म पर अमल हुआ. Or even if you say as-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, दुरूद भी आ गया, सलाम भी आ गया. तो जो ये कहते कि as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah, ये बिदअत है, ये सहाबा ने इस तरह नहीं पढ़ा. Answer is very simple. The term salat, as-salatu is from Quran, sallu. And the term salam, was-salamu is also from the Quran, was-sallimu. तो हमने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहकर बिदअत नहीं किया, कुरान पर ही तो अमल किया है. वी आर एक्टिंग ऑन द कुरान. तो जो लोग ये इस तरह की बातें करते हैं, दे आर ट्राइंग टू मिसगाइड द पीपल व्हेन इट कम्स टू द एक्सेलेंस ऑफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So now you understood. Now again, what is the evidence that this salawat, दुरूद इब्राहिम, ये नमाज में अफजल है, उसकी एविडेंस क्या है? So there is a hadith. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रदियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं, अन्नहु समिअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम से सुना. No, this is another hadith. Let me refer to the hadith. Okay. Inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम, खरजा अलैना, हमारे सामने तशरीफ फरमा हुए. Once the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to us and we said, हमने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कद अलिमना कैफा नुसल्लिमु अलैक, हमको आपने बता दिया, you have taught us that how should we recite सलाम, फकैफा नुसल्ली अलैक, सलाम आपने सिखा दिया, लेकिन हम दुरूद आप पर कैसे पढ़ें? सो इस हदीस की शरह ये है कि तशहुद में, नमाज में, अत्तहियात में, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. सहाबा से, या रसूल अल्लाह, वी नो हाउ टू रिसाइट सलाम अपॉन यू, कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, बट या रसूल अल्लाह, हाउ शुड वी रिसाइट सलावात? अब नमाज में कौन सा दुरूद पढ़े? सलाम तो पढ़ लिया, इस पर अमल हो गया. नाउ व्हिच दुरूद टू बी रिसाइटेड? तो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फक़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम. लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो सय्यिदना ऐड करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Likewise, अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. So in this, it is explicit that this दुरूद is to be recited in the prayer, in tashahhud, क्योंकि सलाम पढ़ चुके हैं और सहाबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, क़द अलिमना, वी न्यू, हम जानते हैं कि आपने सिखा दिया कि हम आप पर कैसे सलाम पढ़े, अब दुरूद कैसे पढ़ा जाए? और नमाज के अलावा अगर कोई सिर्फ यही दुरूद पढ़ता है तो वसल्लिमु तस्लीमा पर कब वो अमल करेगा? सो नाउ दे आर टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि ये दुरूद पाक पढ़ना अफजल जरूर है, लेकिन नमाज के बाहर ये दुरूद पढ़ सकते हैं, यू कैन रिसाइट. बट इफ यू इंसिस्ट के ओनली दिस हैज टू बी रिसाइटेड, देन यू आर नॉट एक्टिंग ऑन द कमांड वसल्लिमु तस्लीमा. तो इसलिए हमें ऐसा दुरूद पढ़ना चाहिए जिसमें दुरूद भी हो और सलाम भी हो. अब इसकी और फजीलत देख लेते हैं. वंस हजरत उबई इब्न काब रदियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए. कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इन्नी, मैं ये चाहता हूँ, उक्सिरु सलात अलैका, कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ
कि मैं आप पर ज्यादा दरूद पाक पढ़ूं। फकम अजअलु लक मिन सलाती, या रसूल अल्लाह, मैं कितना आप पर दरूद पढ़ूं, हाउ मच सलावत शुड आई रिसाइट अपॉन यू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा शिअत, जैसा तुम चाहो, एज यू लाइक। देन हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रुबु, क्या मैं अपने फारिग वक्तों में, ड्यूरिंग माय फ्री टाइम, I make use of 1/4 of the time, that is 25% of my time, to recite salawat and salam upon you, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह फरमाया, मा शिअत, जैसा तुम चाहो, as you wish, फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, जितना तुम ज्यादा पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। The more you recite, the more it is better for you. Now हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु से, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन-निस्फ़, मैं अपना पूरा टाइम में हाफ 50% में आपके लिए दुरूद और सलाम के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। अगेन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मा शिअत, एज यू प्रेफर, एज यू लाइक, फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना बढ़ाओगे, आपके लिए बेहतर है। The more you recite, it's more better for you. Then he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَالثُّلُثَيْن, 2/3 of my time, 25% हो गया, 50% हो गया, now 2/3 of my time, 66.67%, 2/3 मैं आप पर दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए वक्फ करता हूँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Again नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says, मा शिअत, as you like, फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, इससे बड़ा हो तो तुम्हारे लिए भी बेहतर, यानी जितना तुम ज्यादा पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर। नौ हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजअलु लक सलाती कुल्लहा, मैं अपना तमाम वक्त फराइज वाजिबात जो जो मुझ पर फर्ज है उन सबको अदा करने के बाद, इन माई फ्री टाइम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई विल डिवोट एंटायर टाइम इन रिसाइटिंग सलावत अपॉन यू, औ कमा क़ाल। यही मफ़हूम मिलता है कि हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते हैं कि मैं हर वक्त अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऑल द टाइम। अब वो आप चाहे जुबान से पढ़े, चाहे दिल से पढ़े, स्टिल यू आर एंगेज्ड इन सलावत। So a lesson for us, even if we are working, our ladies, even if they are cooking, we are driving, we are on the way to work, we are jogging, walking, instead of using microphone to listen to the music, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam, तो वॉकिंग भी हो जाएगी, दुरूद और सलाम भी हो जाएगा, ऑफिस के लिए जाना भी हो जाएगा, रास्ते में दुरूद और सलाम भी हो जाएगा, कोई कॉल आ गई, किसी से जरूरी बात करनी है, कर लिया, उसके बाद दुरूद पढ़ते रहे, दिल में पढ़ते रहे। Ladies, when they are cooking, they are engaged in house works, they can keep their tongue engaged in the recitation of salawat and salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. तो ये करेंगे तो फायदा क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खैरुल लक, ये आपके लिए बेहतर है, जितना ज्यादा पढ़ोगे इतना बेहतर है। The more you recite, it is better for you. So when Allah's Nabi sallallahu alaihi wasallam has mentioned about something which is better for us, तो हम बेहतरी को छोड़कर क्यों दूसरी तरफ जा रहे हैं? Why are we leaving the betterment and going towards the other path? क्या जरूरत है हमको म्यूजिक सुनकर काम करने की? क्या जरूरत है म्यूजिक सुन के जॉगिंग करने की? क्या जरूरत है म्यूजिक सुन के खाना पकाने की? No, we are to make our tongues engaged in the recitation of salawat and salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. और इसमें ये भी अल्लाह का जिक्र है, वही अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम, या अल्लाह सेंड salawat and salam. So this is also a zikr of Allah tabarak wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam, may salawat and salam of Allah be upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. तो दुरूद पाक पढ़ने में अल्लाह का जिक्र भी है, हुजूर पर दुरूद भी है, और बेटरमेंट फॉर अस, कितना बेटर के हुजूर ने फरमाया, इफ यू आर रिसाइटिंग ऑल द टाइम सलावत, यानी आपका पूरा वक्त वो उबई इब्न काब अगर आप पढ़ते रहते हैं, नाउ व्हाट विल हैपन, अगर तुम ऐसा करोगे, देन योर प्रॉब्लम्स वुड बी सॉल्व्ड, आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, एंड योर सिंस वुड बी फॉरगिवन व युगफर लक ज़ंबुक, अल्लाह तमाम गुनाह भी माफ फरमा देगा, जो जो खताएं हुई वो सब माफ फरमाएगा। तो सहाबी को कहकर पैगाम हमें मिल रहा है,
that if we also recite salawat and salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam by the barakah of durood and salam, Allah will relieve us from the difficulties, our problems will get solved and our sins will be forgiven. So there is a message for us. O Ubay ibn Ka'b, you keep reciting salawat and ballighu anni walau ayah. Pass it from me even if it is one ayah. So Hazrat Ubay ibn Ka'b, in order to fulfill the command of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, ये हदीस हम तक पहुंचाए कि ए हुजूर के गुलामों, दुरूद और सलाम पढ़ते रहोगे, तुम्हारे लिए बेहतरी होगी, तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे और अल्लाह तुम्हें बख्श देगा दुरूद पाक की बरकत से. What a beautiful thing. And now another hadith. शायद इसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा, so we will have to continue this on Monday inshallah. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said, إذا سمعتم المؤذن, जब तुम मुअज्जिन को अजान देता सुनो, when मुअज्जिन says अजान, फक़ूलू मिस्ल मा यक़ुल, मुअज्जिन जो अल्फाज दोहराए उसको तुम भी दोहराओ. When मुअज्जिन says Allahu Akbar, you also say Allahu Akbar, Allahu Akbar. And in light of the narrations, अल्लाह ताला एक एक कलमे के बदले में गालिबन रिवायत में एक एक लाख सवाब अता फरमाए. So when you repeat the term Allahu Akbar, you are being rewarded with 200,000 rewards. और ये हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने औरतों से फरमाया, this was mentioned for the females, for the ladies, कि if you repeat the muazzin's terms Allahu Akbar for every term, أو كما قال صلى الله عليه وسلم, 100,000 rewards. Again muazzin says Allahu Akbar 4 times, तो 4 लाख सवाब मिलेंगे, 400,000. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 6 lakhs. अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 8 lakhs. हय्या अला सलाह, 10 lakhs, 1 million हो गए. हय्या अल फलाह, 12 lakhs, 1.2 million. Allahu Akbar, 14 lakhs. ला इलाहा इल्लल्लाह, 15 लाख सवाब अल्लाह अता फरमाता है अपने फजल से अगर हम अजान को रिपीट करते हैं, मुअज्जिन के कहने पर रिपीट करते हैं. Now this was question, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, what about for males? तो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, for the males double the reward. तो मर्द अगर मुअज्जिन के अजान का जवाब देते हैं तो 30 lakhs 3 million सवाब अल्लाह ताला अपने फजल से अता फरमाता है. सुभान अल्लाह. So now हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम states, when muअज्जिन says, you repeat thumma sallu alayya, and after the azan you send salawat upon me. Now from this we understand कि अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ना हुजूर का हुक्म है. दिस इज द कमांड ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रिसाइट सलावत आफ्टर द अजान. सो इफ वी से फॉर द सेक ऑफ बरका, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहु अकबर. द फॉलोअर्स ऑफ वहाबिज्म एंड देवबंदिज्म दे से कि ये तो बिदअत है, अजान से पहले दुरूद कहाँ है, आपने अजान में मिला दिया. सो दिस इज, they are trying to misguide us, हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं. We did not make this दुरूद पाक as part of अजान, इसको अजान का पार्ट नहीं बनाया. For the sake of बरका हमने बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ा और दुरूद भी पढ़ा. तो पार्ट ऑफ अजान अलग है, बरकत के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ और दुरूद पढ़ना अलग है. क्यों? हर नेक काम के लिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना ये क्या गुनाह है? तो दुरूद पाक भी बरकत के लिए, बिस्मिल्लाह शरीफ भी बरकत के लिए. तो मुअज्जिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, उसके बाद अजान देते हैं. तो ये अजान का हिस्सा नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ द अजान. दिस इज फॉर द सेक ऑफ बरकत. नाउ वी आस्क देम, यू आर रिलक्टेंट टू रिसाइट दुरूद बिफोर अजान. हुजूर ने फरमाया अजान के बाद दुरूद पढ़ो, तो कम से कम अजान के बाद तुम पढ़ो ना. व्हाई डोंट यू रिसाइट आफ्टर द अजान एटलीस्ट? दुरूद पाक का हुक्म सुम्मा सल्लु अलैहि, तुम इसके बाद किधर है? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि, सुम्मा सल्लु अलैहि, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से ये भी इशारा मिलता है कि अजान से पहले या बाद दुरूद पढ़ना ये गुनाह नहीं है. दिस इज नॉट बिदअह, बिकॉज अजान इज डिफरेंट. दिस इज फॉर द सेक ऑफ बरका. वी हैव नॉट
not made it part of azan. And there's another wisdom behind this. In light of the hadith, अगर कोई अजान के वक्त बातें करता है, if a person is engaged in talking while the azan is going on, तो इस तरह की रिवायत मिलती है कि उसके लिए खतरा है कि शायद ईमान मौत के वक्त कलमा नसीब ना हो. So the one who is talking during azan, there is a fear that he might not be able to recite kalima at the time of his deathbed, at the time of his death. तो अब मुअज्जिन दुरूद पढ़ रहा है अजान से पहले, तो ही इज अलर्ट, गिविंग एन अलर्ट टू अस, हमको अलर्ट कर रहे हैं कि मैं अजान देने जा रहा हूँ, खामोश हो जाओ, अजान सुनो, अजान का जवाब दो, सवाब भी मिलेगा, हिफाजत भी मिलेगी. सो दुरूद पाक माइक में, लाउड स्पीकर में अजान से पहले पढ़ना, दिस इज टू अलर्ट पीपल कि अब अजान होने जा रही है. बी केयरफुल, बी अलर्ट, डू नॉट टॉक. इफ यू आर एंगेज्ड इन टॉकिंग, keep silent, because now we are going to give the azan, and if you listen to the azan, you are to respond to the azan. You will be rewarded for responding to the azan, and do not talk during the azan. तो कितनी हिकमत है. अब इसको लेके बिदअत 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 कहना, अल्लाह अकबर. देख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा सल्लु अलैया, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो. फइन्नहु मन सल्ला अलैया, कि बेशक जो मुझ पर दरूद पढ़ता है, सलातन अलैहि, सलातन एक दुरूद पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा. सुम्मा सल्लल्लाहु लियल वसीला, उसके बाद मेरे लिए मकाम वसीला की दुआ करो. Now our Nabi sallallahu alaihi wasallam is commanding us to recite the dua after adhan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah आति सय्यदना मुहम्मदन अल-वसीला. हुजूर ने फरमाया मेरे लिए मकाम वसीला की दुआ करो. वल फजीला, फजीलत की, यानी अल्लाह ताला मुझे बड़ा मकाम अता फरमाए, इसके लिए दुआ करो. वबअसहु मकामम महमूदा, एंड आल्सो से या अल्लाह grant your Nabi, your Habib sallallahu alaihi wasallam the maqam al-wasila, grant him al-fadila, grant him the station of praise, maqam mahmud ata farma. Now some people they say, you see, Huzur के लिए तो हम दुआ करते हैं. How dare you go to Medina Sharif or you be here and call out saying, Ya Rasulullah, undur halana, Huzur को तुम बुलाते हो, Ya Rasulullah कहते हो, whereas we are praying for our Nabi, हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं. तो जब हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो माअज़ल्लाह वो हमारी दुआओं के मोहताज हैं, तो हम क्यों उनसे मदद मांगे. And some followers of Wahhabis, they speak this, कि we are praying for Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, Allah is blessing him because of our duas. लेकिन ये जो कहा गया है ना कि वहाबी देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं. अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी रहमतुल्लाहि अलैहि used to say कि these people they just utter but they don't realize what they do, what do they utter. क्या बोलते हैं इनको ही पता नहीं. हदीस में क्या है, वबअसहु मकामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, या अल्लाह उन्हें मकाम महमूद अता फरमाया जिसका तूने वादा फरमाया. For that मकाम for which you have promised, या अल्लाह. तो क्या पता चला हम हुजूर के लिए दुआ इसलिए नहीं करते कि हमारी दुआ से अल्लाह देगा, नहीं, अल्लाह ने तो ऑलरेडी दे दिया. अल्लज़ी वअदता, जिसका तूने वादा फरमाया. Because in the Quran Allah states, Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, oh my Habib, surely we will give you the station of praise very soon. जल्द हम आपको मकाम महमूद में रखेंगे, यानी आपकी सब के सब वहां तारीफ करेंगे. इस पर भी हमने गुफ्तगू पहली क्लास में की थी. तो मकाम महमूद जब अता कर दिया, अल्लाह ने वादा फरमा दिया, तो हमारी दुआ से कुछ फर्क नहीं पड़ता. जब हमारी दुआ से फर्क नहीं पड़ता तो हम क्यों दुरूद पढ़ते, हम क्यों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मकाम वसीला की दुआ करते हैं. रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वद दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदता. क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह से उसके बाद दुआ करते हैं, वरज़ुक़ना शफ़ाअता, या अल्लाह हमें तेरे हबीब की शफ़ाअत अता फरमा. और वो क्यों? उसकी वजह ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फमन सअल लियल वसीला, जो मेरे लिए वसीला मकाम वसीला की दुआ करेगा, हल्लत लहु शफाअत, उसके लिए मेरी शफाअत है. So we are making this dua not to benefit Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, but for us to get the shafaat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
तो जो लोग ये कहते हैं कि हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं, वो बेवकूफ है, वो जाहिल है, वो बेअदबी कर रहे हैं। हम दुआ इसलिए करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो आपको दे दिया है, लेकिन आपके लिए हम ये अल्फाज बोल देंगे तो आपकी शफात हमें मिल जाएगी, आप हम पर करम फरमाएंगे। In order to receive the shafaat of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, we do recite this dua after the adhan. So, ab alhamdulillah, you got a clear picture regarding this, that those who object, saying that we are praying for Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, it is their madness. The reality is, in order for us to get the intercession of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. So now, alhamdulillah, we have spoken a little from this hadith, and I think we have completed so far only one part of this hadith, excellence of salawat and salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Rest, inshallah, we will continue on Monday by 9 PM inshallah. वक्त पे हाजिर रहने की कोशिश करें ताकि जल्दी शुरू हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने का और सुनने का शर्फ हमको मिले। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।